Okay, good evening, everyone. How are you all? Good evening, sir. Evening, sir. What Good about evening. you, sir? Fine. Okay, now we will start our class. So today I'm going to article सर आपकी articles, बात रही है right? So before that, hello. Okay, सर now आप everyone, you have to speak now your topic. यस सर यस सर बट आप पहले हम ना एक एक करके टॉपिक अपने क्लियर करेंगे, बोलेंगे, ताकि सब लोग जब आ यस जाएंगे विद इन इस टाइम के पीरियड के बीच में, देन आई विल स्टार्ट माय टॉपिक. ओके, so we will start. You have to take only 2 to 3 minutes. Okay, 2 that's it. Okay, then I will ask some questions. Okay, okay, so you have 1 minute. Revise the topic, read your topic, whatever you have, then we will start. यस सर First, Rachna ji will speak, then Sushil ji, then Priyanka, then Daksha ji, then Ashwani ji. Okay, ओके सर okay, take your time, prepare yourself in 1 minute, then we will start. It will start in 9:04 or 9:05. Okay, let's start. Please. Yes, किसको पहले बोलना था? I forgot. एक हाँ जी, बोलिए. अ, हाँ मैं क्या बोल हाँ my biography on uh, the legacy of Stephen Hawking. Today I want to take you a short journey through the remarkable life of a man who defied the odds and reshaped our understanding of the universe. Stephen Hawking was a renowned British theoretical physicist, cosmologist, and author celebrated for his groundbreaking contributions to our understanding
of black holes and the nature of the universe. Born on 8 January 1942, he was diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis at the age of 21, which gradually paralyzed, paralyzed him, paralyzed him, but did not diminish his intellect or determination. Hawking seminal work, particularly through his book, A Brief History of Time, brought complex scientific concepts to a broader audience, making him a household name. His ability to communicate profound ideas about space, time, and the fundamentals of the cosmos alongside his use of a speech generating device inspired millions. He passed away on the 14th March 2018, leaving a lasting legacy in both science and popular culture. That's it, sir. Thank you. Very nice. So I just want to ask from Dakshna ji. रचना जी ने किस टॉपिक के ऊपर बोला? Could you please let us know? Yes, sir. इस टॉपिक पे कौन सी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर उन्होंने बताया अभी? Sir, I can. Hello. Yes, yes, Hello. please speak. Please speak. Yes, sir. Rachna speak on biography of Stephen Hawking. She spoke, past form, na? She spoke on, okay. Okay, sorry. She spoke, yes. Okay, very nice. Okay. Yes, now next person, please. Go for it. Who is next? Priyanka ji. Yes, please go for it. Priyanka ji. Yes. My biography on Arunima Sinha. Arunima Sinha is the first handicapped woman in India who climbed Mount Everest. Along with this, she has been a national level volleyball player of India. She was born on 20 July 1989 in Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh state. She lost her left leg in a terrible train accident which could have ended her dreams. In the hospital, she decided she want she would focus on climbing Everest as her next goal because she had read about it in a newspaper there. And 2 years later, she did exactly that. In May 2013, Arunima became the first amputee woman to climb Everest with a prosthetic leg. By the end of 2014, Arunima had climbed six of the seven summit and it 2019 complete her challenge by climbing Mount Vinson in Antarctica, become the first female amputee to climb this southern peak. Her story is a powerful example of how determination can turn a disability into a path to greatness. Yes, with the help of right leg, she did the right thing in life. Mount Everest never said, "You can't reach me without leg." All you have to have is hope. And
That's what Arunima showed. In front of her hope, even Mount Everest became the smallest. Sir, I have done. Very nice. So may I now I just want to ask from yes. Wait. Let me check the participants. Yes, Taufik, please let us know प्रियंका ने किसके बारे में बताया अभी? Taufik, please let us Sir, know give me प्रियंका 5 ने भी minute किसके time. बारे में बताया जी? Hello, sir. You need Hello. 5 minutes time. Okay. Yes, sir. I My asked mobile अभी is. प्रियंका ने किस टॉपिक के ऊपर बोला है? Sir, I was not. I Okay. didn't listen Okay. No anything. issues. No issues. My Okay. mobile battery is very Yes. low. Yes. That's why. Please. Who's next? Okay. No issues. No issues. Go for it. Yes. Who is next? Who is next? सर आंसर बताना है। Yes. No. प्रियंका जी। Speak. You have to speak about your now. You have to speak. Who is next after Priyanka ji? Who is the next person? यस सर, सुशील कुमार सिंह। Yes, Sushil ji. Please share your topic. A mind is said to be healthy when he has got no beauty pain of disease. When a man is the best spinners on the has got health is the most important thing in life. It is more variable that the choice of a man so beautiful without health. सुशील जी आपकी वॉइस नहीं आ रही। Okay. Sushil ji, you may take time. I will give you I will give you chance at last, right? Then you may speak, right? Okay. Who is next? दक्षा जी। एक मिनट Yes, सर। Daksha ji, please share topic. यस सर। सर ये एक मिनट बंद हो गया। एक हेलो हेलो। Yes, आपकी please speak. आवाज आ Speak. रही है दक्षा जी। Yes, बट यहाँ मेरे yes, you are स्क्रीन से audible. You are audible. Please speak. एक मिनट सर, मेरे स्क्रीन से चला गया। एक मिनट। ओके सर। कोई हाँ आप अपना टॉपिक बोलना स्टार्ट कर दीजिए, कोई बात नहीं. जी। If you have your notebook with you, you may read and start your topic. Yes, sir. My biography is on Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar was the most popular and respected singer of India. She was born on 28 September 1929 in Indore. Lata Mangeshkar's father's name was Dinanath Mangeshkar and mother's name was Sevanti Mangeshkar. Her childhood name was Hema. Later, her father changed her name to Lata Mangeshkar. She lost her father at the age of 13, and being the eldest of 4 siblings, all the responsibility of the family fell on her. Lata Mangeshkar started her career with some Hindi and Marathi acting. Although she always wanted to become a singer, she sang the song film Aapki Seva Mein in 1946, after which there was a lot of
Discussion about Lata Mangeshkar from the song of this film. Lata Mangeshkar sang more than 30,000 film and non-film songs. Lata Mangeshkar died at the age of 93 on 6 February 2022 in Mumbai. Lata Mangeshkar may be no more with us now, but her songs will always be present in our lives and will be reminder of her. Thank you. Okay, Daksha ji, which song of Lata Mangeshkar do you like the most? वही सर मेरी वो कभी खुशी कभी गम का है मेरी आंखों में तू है समाया मेरा जीवन है Okay, तेरा छाया जी थैंक यू nice. Yes, Ashwini ji, please share your topic. Yes, sir. Sorry, sir. I have written this paragraph. डॉक्टर नसीमा हुजूर वो लिखना रह गया डॉक्टर मैं अभी बोलती हूँ मैंने टॉपिक शेयर किया ना उसमें डॉक्टर लिखना भूल गई No issues, no issues. You may speak. कोई बात नहीं. ओके बायोग्राफी ऑन डॉक्टर नसीमा हुजरूक Dr. Nasima Huzruk is a true inspiration and her brief lineage into her remarkable life. Born on September 2, 1950 in Solapur, Maharashtra, India. Become virtual bound at 16 due the spinal cord injury earned a Bachelor of Arts degree in economics, defined her disabilities, worked in the Central Exercise Department before taking uh, voluntary retirement, founded Helpers of the Handicapped Kolhapur in 1984 to support people with disabilities, established a vocational training center in 1993 and hostel for the disabled 1996 received the Kolhapur Bhushan Award in 2002 for her outstanding um, collaborations, contributions, authored an autobiography, Sakaji Khurshi, wheelchair, detailing her journey, continues to inspire continuously in individual through her remarkable story and selfless work. Slogan for us to the sky is the limit. I have done, sir. Sir, Okay. done. Yes. I have heard it. Very nice, all of you. You have done good. Okay. Tawfiq, please share your topic. Please share your topic. Yes, yes, sir. My topic is about Sudha Chandran. Sudha Chandran was born in Mumbai in 1965. She is an famous Indian classical dancer. Uh, Sudha Chandran meets with an accident at the age of 16. Her right leg was infected due to infection, and she got a prosthetic leg in Jaipur. Uh, Sudha learned to dance again with her artificial leg, and she acted in film Mayuri based on her life. Sudha is also well known television actress. She won many awards for her performance. Sudha inspires people with her courage and determination. He Sir done, sir.
Done. Okay, okay. It's all right. Good. Good, 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 good. Okay, now we are just going to do the new topic that it's all about articles, right? So I'm just going to just show you the slide for 2 minutes. Go through that, right? उसको एक बार आप देखना, and then we have Tawfiq. Tawfiq will explain what he understood from that slide, right? I will Okay. teach you, right? तो आप भी evaluation करा करो, right? And try to speak in English. If you want to make any kind of sentence, try to speak in English. और जब भी आपका टॉपिक बोलते हो, इट्स फॉर ऑल, राइट? तो प्रिपेयर योर सेल्फ थ्राइस, राइट? और मोर देन 4 times, 5 times, 6 times, 10 times, right? So you are able to speak more frequently, right? And better. Okay, हम आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल्स क्या होते हैं एंड वेयर डू वी यूज देम. सर डिस्कनेक्ट हो गया. ओके, होप इज दिस विजिबल टू यू. Yes, sir. ये ओके, राइट. अब हम ऐसा करा करेंगे, जैसे चौहान जी है ना, ही यूज टू कम एट 9:30 एंड ऑल, तो हम इस 9:20 पे थोड़ा चालू कर दिया करेंगे टॉपिक. ओके, आर्टिकल्स ए और एन. पहले हिंदी में मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा, कोई बीच में मत बोलना, राइट? जब मैं टॉपिक को कवर अप कर लूं तब बीच में आप क्वेश्चंस बोलना, राइट? Yes, देयर sir. इज नो. यस, हाँ. आर्टिकल्स यहाँ पे CLES है, यहाँ पे ऊपर जो है एरर दे रखी है स्पेलिंग को, तो हम इसको नेग्लेक्ट करना आप लोग, ठीक है ना? ओके, तो पहला आपका यहाँ पर दे रखा है ए. ए का मतलब भी हमारा एक होता है, एन का मतलब भी हमारा एक होता है, राइट? ए मीन्स वन, एन मीन्स वन, राइट? एंड वेयर डू वी यूज ए? टॉपिक विल एक्सप्लेन. पहले 2 मिनट देखो, देन यू एक्सप्लेन. 2 मिनट Sir, आप देखो. a sir a we can use when the words begins with the consonant sound, ठीक है. and we use when words sound start with an vowel sound. यस, किस किस को क्लियर नहीं हुआ? मैं एक्सप्लेन करता हूँ. जो ए होता है और एन होता है, हम इन दोनों को यूज करते हैं काउंटेबल के साथ. काउंटेबल मतलब जिसको गिन सकते हैं, बट यहाँ ये भी दे रखा कि सिंगुलर हो, मतलब एक ही हो. जो हमारा ए है वो यूज होता है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ. कॉन्सोनेंट जो हमारा हो गया BCDEFGHK, इस तरीके से हो गया, राइट? और वॉल साउंड हमारे हो गए AEIOU. जो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उसके में एग्जांपल दे रखे हैं, अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ हाउस, अ टीचर, राइट? और वैसे ही हमें यहाँ पर दे रखे हैं एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आर, एन अम्ब्रेला. अब आप ये बोलोगे यहाँ पे जो आवर वाला दे रखा है, वहां पे मैंने एन क्यों लगाया? एच जो है, एच वो तो हमारा क्या कहते हैं, Silent है sir. ये- हाँ, यहाँ पे क्या है हमारा, साइलेंट में यूज हुआ है. अरे गेटिंग माई Yes. पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है. तो आई डोंट वांट कि भाई इसमें ज्यादा में बातचीत करनी चाहिए, बिकॉज हम आज सेंटेंसेस बनाएंगे, राइट? सो Yes, लेट मी sir. प्रेजेंट द नेक्स्ट स्लाइड. वेट, नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट द. कि हमारा द कहाँ यूज होता है, ठीक है? यस प्लीज, हु वांट्स टू रीड? इज देयर एनीबॉडी हु वांट्स टू रीड? Sir, I want to read. श्योर, दो दो करके सब रीड करेंगे, राइट? टू टू. यस दक्षिण जी, So, रीड करें. directions region: the north, the south, the east, and the west. ओके, Gulf: गल्फ्स. the Gulf Stream, the Persian Gulf, the Finland Gulf, etc. ओके, अब हमारा जो द है, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट थिंग, द यूज होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए. और अब जो भी लिस्ट आएगी ये सब चीजें क्या है, हमारी स्पेसिफिक हैं. ओके, नेक्स्ट,
रचना जी प्लीज रीड. Union of Country States, the United States of America, the United Kingdom, etc. Group of lakes, the Great Lake, the Flat Lake, and the इसका प्रोनाउंस क्या होगा सर? Vladimir Lake. यस वेल नहीं सही. हाँ, ओके, etc. ओके कि यूनियन ऑफ कंट्री हो गया, स्टेट्स हो गया, यूनियन ऑफ कंट्री और स्टेट्स हो गया, ग्रुप ऑफ हमारे लेक्स हो गया. राइट. यस. ऐश्वनी जी प्लीज रीड. The groups of the is आइलैंड्स. नहीं नहीं ये इसलैंड नहीं होगा. आइलैंड्स. oh sorry sir, islands, No, no. the Philippines, the Caribbean, the Canaries. Canaries Honarcus, ओके अभी नीचे. rivers, the 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 आप ये भी Mullah, रिवर्स में, आपका रिवर्स में ये भी हो सकता है. द गंगा, द सतलुज, द कावेरी, ये समझ लो. yes, ठीक है ना. yes, द अमेजोन. हाँ ये है. ओके yes. नेक्स्ट. नेक्स्ट टॉपिक प्लीज रीड. Seas, the Mediterranean, the Black, the Red, the Nile, etc. Canals and channels, the English Channel, the Panama Canal, the Suez Canal, सोएज etc. कैनल्स. यस. ओके ये सारा में दे रखा है. और कल मैं आपको, जैसे मैंने आपको होमवर्क बताया था, अब मैं आपको भेजूंगा 6 टेंस कल. आप समझना मेरी बात. कल आपकी क्लास नहीं है, 6 टेंस भेजूंगा. संडे Sir, को मैं आपको एडजेक्टिव की लेट मी गिव मिनट. ओके लेट मी गिव मिनट. ऐश्वर्या जी. राइट. संडे को मैं आपको एडजेक्टिव्स भेजूंगा और ये आर्टिकल्स भेजूंगा. तो जो भी आपको ग्रामर वाला, और इतना ज्यादा वाइड नहीं होगा, बहुत शॉर्ट लिखा हुआ होगा. बट अभी आपको पढ़ाना है इसलिए मैंने बहुत आपको वाइडली स्लाइड्स लिए हैं. हाँ जी बोलिए. sir, गोली मीन्स क्या होता है? जी कहाँ लिखा हुआ है? ये सेकंड में फर्स्ट है, सेकंड लाइन में सेकंड. फर्स्ट. अच्छा. ओके ये एक ज्योग्राफिकल टर्म है. ज्योग्राफिकल टर्म है गल्फ स्ट्रीम. किसी को यस ज्योग्राफिकल टर्म है इसको शुद्ध हिंदी बताओ तो कोई. इज देयर एनीबॉडी हु नो गल्फ्स? गल्फ मतलब सर रण प्रदेश, रण. इसमें ना गल्फ्स का मतलब ऐसे खाड़ी टाइप में नहीं होता, खाड़ी टाइप एंड ऑल. हाँ, खाड़ी खाड़ी देश. हाँ अंडरस्टैंड. ये बंगाल की खाड़ी के बारे में आपने सुना होगा. यस सर, यस सर. यस सर. हाँ वो. हाँ द बंगाल की खाड़ी एंड ऑल वो होते हैं. क्लियर हुआ आप लोगों को? तो जो यस भी हमारे, हाँ अब हमारा द यूज होता है कहाँ पर, जो भी हमारी चीजें होती है स्पेसिफिक होती हैं. राइट. ओके now what you have to do, just frame any one sentence by using a, one sentence by using an, one sentence by using the. Right. Okay. Meanwhile I'm just going to present. सर आवाज. I said आपको एक एक आपको एक एक सेंटेंस बनाना है. ए पे, एन पे और द पे. अभी सर. हाँ हाँ अभी माइंड में बना लो, लिख के बना लो, देन आई विल आस्क वन बाय वन. सर आई में. आई में या मे आई होगा बताओ. सॉरी, मे आई. हाँ सॉरी. बोलो 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 बोलो. श्योर श्योर. अरे कोई नहीं. नो नो नीड ऑफ सॉरी. बोलिए.
I read a book. I read a book. Okay, next. I like to eat an apple. I like to eat an apple. Okay, nice, good. Next. The sun rises in the east. The sun rises. Okay, in the east. Or more sentence. Do you want to make more sentences? More. An umbrella is used in rainy season. You use an umbrella in rainy season. Okay, next. Okay, sir. Uh, uh, Okay, let me show you some examples. Okay, wait. a mango is a summer fruit. Okay, nice, good. Nice try. Very nice. Okay, now I'm going to present. Yes, प्रियंका, आप रीड कर सकते हैं ये द वाला. प्रियंका, इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? आप ये द वाला रीड कर सकते हैं, द वाला, Yes, sir. प्लीज. Use of the unique things. The sun, the moon, the sky, the environment, etc. Singular यस. nouns अब देखो, representing. हम लोग यहाँ पे यूज अब यहाँ पे दे रखा है हमें कि जो चीजें यूनिक होती हैं, राइट, हम ये कह सकते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में एक है, पूरी दुनिया में एक है, राइट, या फिर एक अनेक उनकी पर्सनालिटी है, राइट, तो वो क्या हो जाता था, सन द मून हो गया. आगे पढ़ेंगे प्रियंका, आप पूरा रीड कर लें, Singular देन आई विल एक्सप्लेन. कोई नहीं. singular noun representing the whole class. The rose, the computer, the scientist, etc. यस. अब Superlative कंप्यूटर्स degree. बहुत, देयर आर सो मेनी कंप्यूटर्स, राइट, तो हमने यहाँ पे कंप्यूटर करके उसके था साइंटिस्ट, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, होल क्लास. अब यहाँ पे होल क्लास के बारे में वो स्कूल वाले क्लास मत समझना. ये जो हम क्लास है, एक क्लास नहीं है. क्लास का मतलब यहाँ पे जाति से है, जाति का मतलब वो वाली जाति नहीं है, एक ग्रुप से है. तो यहाँ पे क्लास को आप समझो ग्रुप से. ठीक है. ओके, अगला पढ़िए आप. Superlative degree of adjective. The tallest, the most interesting things, etc. यस. अब मैंने आपको क्या बात बताई थी, कल मैंने आपको तभी पहले एडजेक्टिव कराया, राइट. तो आपको जो भी चीज कराई जाएगी वो एक चीज दूसरी चीज से इंटर रिलेटेड होगी. तो कल मैं आपको एडजेक्टिव इसलिए कराया था, वो कारण यही था कि आपको मैंने ये बताना चाह रहा था कि जो टॉलेस्ट है, इससे पहले ये नहीं बोलेंगे हम राहुल इज अ टॉलेस्ट बॉय, हम बोलेंगे राहुल इज द टॉलेस्ट बॉय. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ही इज yes. ही इज अ मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास. नहीं, ही इज द, सॉरी, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो हम कई बार ये माइनर माइनर सी गलती करते हैं. समटाइम्स वी थिंक दैट लर्निंग ग्रामर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर इंग्लिश. यस, यू आर राइट. हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, बट हम एरर्स ना करें, हम गलती ना करें. दैट्स व्हाई लर्निंग ग्रामर, राइट. सो द लास्ट, बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ये हमने डिस्कशन कर ही लिया था, राइट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्प्ले सम ऑफ द सेंटेंसेस एंड रचना जी will read. And Rachna ji, you have do not have to stop. You have to read fast. Okay. One, अगर आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, राइट, you were Hmm. saying that you are just facing some kind of problem and all, but when you read something, so you will not face any kind of problem. Okay. Yes, sir. Okay. और मैं आपको एक वीडियो भी भेजूंगा अभी ग्रुप में, आप उस वीडियो को देखना, और उस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम क्लास में डिस्कशन करेंगे. Okay. ठीक है. ओके. यस रचना जी, प्लीज रीड. ये सारे एन वाले हैं, इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि हम कहाँ कहाँ एन को यूज करते हैं. डायरेक्ट एग्जांपल दूंगी या ऊपर का भी होगा? सॉरी. मतलब पूरा बोलूंगा. हाँ जी. हाँ. Article N is used when a word begins with a vowel sound A, E, I, O, U. Here are example sentences using article N.
अच्छा वेट वेट वेट, हाँ, अगर मुझे कोई यहाँ पे बता सकता है कि हम AEIOU को ही हम आर्टिकल्स क्यों कहते हैं, हम BCDE को आर्टिकल्स क्यों नहीं कहते? क्योंकि सर ये अ आ ई से स्टार्ट होते ना। ओके, एनीबडी एल्स हु जस्ट वांट टू ट्राई? मीन्स आप सही बोल नहीं रहे हो। सर, वो साउंड है ना, एग्जाम्पल ये इंट्रोवर्ट है ना, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट है ना, एक्सट्रोवर्ट पढ़ते टाइम आप वहां पर साउंड एक ही निकलती है, इसलिए वो ये होता है, कॉन्सोनेंट ये में नहीं क्या लिख है सकते। यस, ओके, एनीबडी एल्स? सर, ये क्या है? वो स्क्रीन आ रही है, कोई बात नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। स्क्रीन गई सर, नहीं हमारा नहीं, वो मैंने मतलब। करा है, आई विल एक्सप्लेन यू ना, कोई बात नहीं, आप बोलिए बोलिए। और बताइए, क्या फर्क होता है हमारा AEIOU में बाकी सब में? ओके, मीन्स कोई भी हम वर्ड बनाते हैं या सेंटेंस वर्ड बनाते हैं तो उसमें ये पांचों आर्टिकल यूज होते हैं। इनके बिना वर्ड क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, व्हाट डू वी कॉल्ड वॉवल्स इन हिंदी? क्या बोलते हैं? व्यंजन सर। हाँ, एक व्यंजन व्यंजन सर। पक्का व्यंजन कहते हैं, सोच लो। सर स्वर स्वर। गुजराती स्वर में तो स्वर व्यंजन कहते हैं, मुझे पता है। स्वर। स्वर यस कहते हैं। सर। सॉरी यस, सर, सर हाँ तो हाँ, अरे पांच नहीं होते नहीं, हैं। कोई बात नहीं, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं होती है, कोई नहीं, ये तो आप लर्न कर रहे हो ना। अब आप देखना, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, आप मेरी बात समझना, ये बहुत बेसिक सी बात है, राइट? अब इनको हम स्वर क्यों कहते हैं और व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं, मुझे बताओ, क्या बताओ। सर? हम स्वर को स्वर क्यों कहते हैं, व्यंजन को व्यंजन क्यों कहते हैं, क्यों उनको डिफरेंशिएट अलग अलग किया गया? क्योंकि हम जब भी कोई वर्ड बोलते हैं वो इन उच्चार की सब वजह का, से सर। हाँ, इनका यूज उसमें आता है, इसलिए मतलब उसमें उसका फर्क होता है। हाँ, यूज उच्चार के अनुसार होता है सर। यस, अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी, राइट? हम्म, मैंने लिखा बी, राइट? हम्म, अगर मैं इस बी को हिंदी में लिखूंगा, राइट, ब तो मैंने यहाँ यस। पे क्या यूज करा है, मैंने यहाँ पे यूज करा है ई की मात्रा। ये ई की मात्रा, राइट? हम्म, और ये जो हमारी ई की मात्रा थी, वो किसको डिनोट करा था इंग्लिश में, मेरा ई वॉल को, राइट? हम्म, तो ये जो मेरा BCD, राइट, FGH, ये जितने भी है ना, ये जितने भी सारे के सारे हैं, हम्म, ये सब के सब जितने भी हमारे यूज होते कॉन्सोनेंट्स, ये हम्म, हमारे स्वरों का यूज करते हैं, लेकिन स्वर व्यंजन का यूज नहीं करते। तो यही बात है कि अगर हमें इंग्लिश में कोई भी हम वर्ड बनाते हैं, राइट, इंग्लिश का कोई भी हम वर्ड बनाते हैं, कोई भी इंग्लिश का वर्ड लिखते हैं, राइट, तो उसमें हमें वॉल्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ओके, कोई ऐसा वो वर्ड है जिसमें वॉल्स ना आते हो, बताओ, इज देयर एनी वर्ड जिसमें वॉल्स ना आते हो? सर वाओ। वाओ भी आ रहा है, WOW आ रहा है, उसमें ओ आ रहा है, एनी टाइगर अदर वर्ड टाइगर में? टाइगर। ऑल। टाइगर में भी तो आ रहा है, नहीं आई नहीं भी आ सर। रहा है, ई भी आ रहा है। हम्म, सर चेअरअप करना म्हणजे मतलब खूप काय सर सर क्या आई थिंक विदाउट वोवेल विदाउट नहीं ओवेल वी आते? कांट मेक एनी वर्ड। नहीं, यू हैव टू जस्ट टेल मी अ वर्ड, एक कोई ऐसा मुझे वो आपको वर्ड बताना है, राइट, जिसमें वॉल्स ना आते हो। वोवेल्स ना आते बताओ, हो? आपने वो वर्ड सुना, रिदम? यस सर। रिदम रिदम रिदम, हाँ। यस सर। राइट? तो ये रिदम जो वर्ड है, इसमें वॉल्स नहीं आते हैं। और भी एक दो होंगे, आई डोंट नो, राइट? इंग्लिश है तो उसमें कुछ होंगे स्पेसिफिकली। अच्छा, ये गेम की तरह समझो, राइट? ऐसा कोई वर्ड बताओ जिसमें सारे वॉवल्स आते हो, बताओ। नेट पर सर्च मत करना, ईमानदारी से। प्रियंका, सर डू मेरे यू? पास एक ही मोबाइल है, सर्च कहाँ से करूंगी? अरे नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, ओके, एक नहीं नहीं सर। बताइए।
सर अवर एजुकेशन अवर एजुकेशन सर अवर होगा एजुकेशन सर, अवर। राइट राइट राइट, तौफिक इज राइट। कौन है? तौफिक ने बोला है। यस सर यस, एजुकेशन। मैं एजुकेशन ही लिखने जा रहा था, बट आई डोंट नो ना हाउ टू यूज दिस व्हाइट बोर्ड। आई एम जस्ट यूजिंग फर्स्ट टाइम। ओके, तो एजुकेशन एक वर्ड है जिसमें हमारे सारे वर्ड्स आते हैं। तो आप सोचो, जिसने भी ये वर्ड का आविष्कार किया है, राइट, जिसने, मेरी वॉइस रिपीट हो रही है। yes, ओके, सो इन दिस वर्ड वी हैव ऑल 5 vowels। ये कोई सी की आवाज रिपीट हो रही है मेरी। हेलो। Is ओके, Rabi just now is clear. हाँ हाँ, आपको क्लियर हो गया। नाउ प्लीज अब मेक सेंटेंसेस करेंगे, राइट। तो कभी भी आप क्लास में कुछ सीख रहे हो तो इंग्लिश के कुछ फैक्ट्स भी हमें पता होने चाहिए। कभी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हेलो उसके में पूरे डेप्थ में। हेलो, सर, आवाज नहीं आ रही। की वॉइस आ रही है। आ रही है, आ रही है। बहुत धीरे आ रही मुझे। ओके, नहीं सुना। नाउ यू हैव, नाउ यू हैव टू मेक सेंटेंसेस। प्लीज मेक सेंटेंसेस, प्रियंका। प्लीज प्लीज मेक सेंटेंसेस प्लीज। सर ए ई आई ओ पे। ए सर एन दा पे, सॉरी, ए हाँ एन दा ए पे, ए एन दा पे। ए पे। ठीक है सर। सर दिस इज एन एप्पल। दिस इज ए बुक। आई ईट एन एप्पल। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताओ, एमएलए से पहले क्या लगेगा? एमएलए होते हैं ना हर उसके, क्या कहते हैं, एरिया के एमएलए। एमएलए से पहले क्या लगेगा? ए एन दा। सरदार। एन, एन दर सर। ओके, दक्षा जी एन क्यों लगेगा बताओ? क्योंकि अ एमएलए अ से उच्चार होता है सर। यस, गुड। ओके तौफिक, सर मुझे यूनिवर्सिटी से। बहुत धीरे आवाज आ यस रही है। सर आपने म्यूट किया है? नहीं नहीं, मेरा म्यूट किया होता तो आपको आवाज ही नहीं आती है। नहीं मुझे नहीं यस आपने अपने बहुत ही कम सुनाई दे रहा है सर। दक्षा जी, आप हाँ, रिस्टार्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए प्लीज। ओके। ओके, नाउ तौफिक, आई जस्ट वांट टू आस्क फ्रॉम यू। हाँ अब मैं भूल गया, दक्षा जी ने मुझे इंटरप्ट किया एकदम से ना। आई यूनिवर्सिटी फॉरगॉट कुछ व्हाट। तो बता रहे थे सर सर यस, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ओके, यस, हाँ यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए मुझे। उससे पहले क्या आएगा? वोवेल उसके पहले आएगा एन एन सर यूनिवर्सिटी ए आएगा सर। एन एन आएगा यस, सर एन प्रियंका यू आर राइट। प्रियंका ने बोला था ना ए आएगा, ए क्योंकि आएगा सर। यूनिवर्सिटी में यू तो यू हमें आ रहा दिख है रहा है, सर। बट वो हाँ साउंड किसका कर रहा है? या का कर रहा है। किसका कर रहा है? या। क्या या था। से यज्ञ होता ओके है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो या से यज्ञ होता है, हाँ। ठीक है ना? ओके, अब मुझे बताओ यूटेंसिल के आगे क्या आएगा? यूटेंसिल के साथ आगे क्या आएगा? यूटेंसिल। यू टेन ओवेल आएंगे एन आएंगे सर इसके आगे ए आएगा? बताओ फिर यू यूटेंसिल के यू आगे आ क्या रहा है ना आएगा? यू कैंसिल यू मतलब एन आएगा नहीं 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 नहीं, आप ये मत देखो यूटेंसिल है, आप ये देखो उसका हाँ, हिंदी में उच्चारण कैसे हो रहा है। या, अब यह है, और ए यह आएगा। हमारा व्यंजन है। यस, यहाँ पे आएगा आई यूटेंसिल। ये आएगा। यू यस। ओके, चौहान योगेश जी, आपको क्लियर हुआ सब कुछ? ए एन दा का कॉन्सेप्ट? हाँ सर, हाँ सर। ओके, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो एक हम ना मंडे को, एक मंडे को हम नया टॉपिक कर लेंगे, उसके बाद हम हमारे पास टॉपिक चलेंगे। अब हम रोज कुछ ना कुछ ग्रामर के टॉपिक्स करेंगे। जब भी हम कोई टॉपिक करेंगे तो उसके रिगार्डिंग मैं कुछ ना कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा, रैंडम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सेंटेंसेस पर बात होगी उस चीज पे। ओके, हम कुछ सेंटेंस रीड कर रहे थे, उनको पढ़ते हैं अब। चौहान जोगेश जी, आप पढ़ेंगे, राइट? इफ इट्स योर विल यू मे रीड, डू यू वांट टू रीड? यस सर। अब आप देखना, यहाँ पे जो पिंक पिंक वाले हैं ये सारे वोवल्स वाले हैं, राइट? क्या हम उनसे पहले यूज करते हैं? अच्छा, कितनों को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब बहुत पता है? बताओ। क्या सर?
कितनों को इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब पता है? इंट्रोवर्ट लिखा हुआ ना यहाँ पे, ही इज एन इंट्रोवर्ट, हाँ नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, क्या मतलब होता है? अति प्रियंका, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट? नहीं सर, नो सर। नो ओके, सर। आई विल टेल यू। इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपने में रहते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, और हाँ हाँ एक्सट्रोवर्ट जो बोलते मिलते सोशल। अब यहाँ पे एक बात है, लॉजिक है, इनमें से दोनों पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कोई कोई पर्सनालिटी खराब है, दूसरी पर्सनालिटी अच्छी है। ये वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, और मंडे को आपको वोकैबुलरी के वर्ड्स भी मिलेंगे, बेसिक जो आप यूज करते हो अपने वोकैबुलरी के वर्ड्स, वोकैबुलरी के कुछ सेंटेंसेस, राइट। फिर हम आगे क्लास में जाएंगे। तो मंडे को हमारा एक क्लास होगी कि वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स, बेसिक सेंटेंसेस हम करेंगे। हर मंडे को हम ऐसा कुछ करेंगे, मंडे और फ्राइडे सैटरडे बीच में। तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट, फॉर एग्जांपल एज माय परसेप्शन, मुझे ऐसा लगता है दैट दक्षा जी इज एक्सट्रोवर्ट, राइट। और ओके, लेट मी आस्क सर, फ्रॉम मैं अदर्स। कहाँ एक्स्ट्रावर्ट हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ सर। हाँ हाँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आप एक्स्ट्रा वर्ल्ड हो, वर्ट हो। एक्सट्रोवर्ट मतलब एक्स्ट्रा हो गया ना उसमें, एक्स्ट्रावर्ट, एक्सट्रोवर्ट, राइट। और इंट्रोवर्ट मतलब जो इंट्रो मतलब अंदर ही अंदर रहता है, ज्यादा बात नहीं करता किसी अंतर्मुखी, से। अंतर्मुखी, हाँ सर। सर, हाँ ये ही इज एन एलिगेंट बॉय, एलिगेंट मतलब? सर कहाँ है? एम्बिवर्टिव मीन्स भी आप में रहना ना, मुझे हाँ, अकेले। एलिगेंट मीन्स कह सकते हैं ना, अच्छा, स्मार्ट, डैशिंग पर्सनैलिटी वाला एलिगेंट उसको कहते हैं हम। और अच्छा, एलिगेंट एक ब्यूटीफुल या खूबसूरत की एक वो है, क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द है। ओके। सर दक्षा जी, आप अभी जो कभी हिंदी आपकी बहुत अच्छी है, मैं गेस, मेरे को लगता है ऐसा, हिंदी की आपकी। सर, इंग्लिश मस्त कर दो आप। हाँ हाँ, मेरे को नोटिस किया, मैंने बोला आपका शुद्ध हिंदी में आपने उसको बताया अंतर एंड ऑल। ओके, नाउ प्लीज योगेश जी, प्लीज रीड द सेंटेंसेस वन बाय वन। Example sentences. Ava has an umbrella. He is an introvert. She is not an extrovert. I am eating an orange. Sophia's eating an egg daily. Isabella's going to fly an aeroplane. An elephant is such a fat animal. She's not eating an apple. He's an elegant boy. She's an intelligent student. Ali is late an hour. She asks any easy question. We are living in an apartment. I am an English teacher. I saw an accident. Il is training to be an engineer. The movie will गुड, begin in नाइस। an hour. ये सचना जी, आई A वांट यू red टू रिक्वेस्ट, प्लीज रीड द सेंटेंसेस अगेन, बिकॉज आपसे लास्ट मैंने बोला था, प्लीज रीड द सेंटेंसेस अगेन। Yes, yes. Our had an umbrella. He is an introvert. He is not an extrovert. I am eating an orange. Sophia eating an egg daily. I Bernard going to fly an aeroplane. An elephant is such a fat animal. He is not eating an apple. Only is late an hour. She asked an easy question. We are living in an apartment. I am an English teacher. I saw an accident. Elisa is training to be an engineer. The movie will begin in an hour. A red bus left an hour ago. Then, sir. सर एलिगेंट बॉय यानी हिंदी में Clever ना मतलब होशियार स्मार्ट। यस।
Sorry. हो गया Smart. सर देन Okay, good, nice. So I have one more thing last. In last, I just want to share something. Yes. So this is for all of you. At last, I would like to right. Think big, trust yourself, and make it happen. Right. So from today, you have to think it big, trust on yourself, and make it happen. देखो, हम जो भी क्लास ले रहे हैं, अगर मेरा ये मानना है, जब भी आप क्लास ले रहे हो, जब अपना एफर्ट्स डाल रहे हो, तो आप 1% चीज अपना कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो। राइट। आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो, आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख रहे हो, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग। राइट। इंस्टेंट ऑफ दिस भाई मैं अपना फोन एक पास में रख दूं, कुछ ना करूं, घर का काम करूं, या मैं बातें करूं, टीवी देखूं, फोन को स्क्रॉल करूं। राइट। उससे अच्छा है दैट यू आर इन दिस क्लास एंड यू आर Yes, गिविंग sir. योर टाइम। ये बहुत अच्छी बात है। Right, और sir. आपको ये करना है, थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। आपके पास जो भी काम आ रहा है, फॉर गॉड से प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना। कोशिश यही रहेगी कि आई विल गिव यू शॉर्ट नोट्स। सो वो शॉर्ट नोट्स ये रहेगा कि आप शॉर्टली टाइम में आप उसको निपटा पाओ, उनको समझो। ट्राई टू मेक सेंटेंस डेली डेली डेली। राइट। Yes, sir. क्योंकि मैं सबको इवेलुएट करता हूँ, कहाँ आप गलती करते हो, कहाँ आप गलती नहीं करते हो। ऑल यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और बहुत इंथुसियास्टिक हो आप सब लोग, बहुत अच्छे से बोलते हो, एंड लिटरली इट्स अ ग्रेट थिंग। राइट। चौहान जी, यू आर वेरी गुड, क्या आप क्लास ज्वाइन करते हो। थोड़ा सा आपका क्लास रहती है, आपका ऑफिस है। राइट। बट यू ज्वाइन द क्लास, इट्स अ ग्रेट प्लेस फॉर अस। तो मंडे को हम लोग क्या करेंगे, हाँ मंडे को मैं आपके साथ कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स डिस्कस करूंगा, एंड यू विल आस्क डाउट्स, इधर क्विक रिवीजन कर लेंगे, छोटी सी रिवीजन। राइट। छोटे छोटे सेंटेंसों के साथ टेंसेस की, और यही आर्टिकल्स की। और एक बार हम थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे आर्टिकल्स के साथ, टेंसेस की, एडजेक्टिव्स की। राइट। ये 3 टॉपिक जो हमने अभी तक करे हैं, इनके कल अभी आगे बहुत टॉपिक्स हैं। आई हैव सो मेनी टॉपिक्स। राइट। तो क्लास में बने रहो, आपकी बहुत अच्छी ग्रामर हो जाएगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, यू वांट टू टीच समवन, ट्राई टू टीच समवन। राइट। अगर आपको कोई छोटा सा टॉपिक आ रहा है, सो दीज आर वेरी गुड टॉपिक्स। राइट। तो इफ यू समवन ना, ग्रैंड चिल्ड्रन or any children or any neighbor, your brother, sister, any one of you, right, कोई आपके पास है आसपास, so you may teach, right, some of the lessons, right, from English grammar। तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा Yes, थॉट है जो मैंने अभी लगा रखा है। एक थिंक बिग, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मेक इट हैपन। ओके। sir. सो द Sir, क्वेश्चन ऑफ द डे, which? क्वेश्चन ऑफ Yes, द sir. डे, था, मैं लास्ट में पूछता हूँ ताकि सब लोग बोले। ओके। व्हेन यू फील सैड, whenever you feel sad at any particular time, तो इसमें 2 क्वेश्चन है। why do you feel sad, and when you feel sad what you do। ठीक है। are you getting my point? Yes, sir. Right. For example, let's start from me. I feel sad when I do not have money। ये तो मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ, टेक्निकली मतलब अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग जवाब दे रहा हूँ। एंड फ्रॉम माई हार्ट, आई कैन से, when I can, how can I explain, when I hurt someone, at that particular time I feel very sad, right? So I used to say sorry to that particular person, right? I used to listen music, I used to go at that particular house, और I used to communicate with that person। ये करता हूँ मैं। तो जब आपको बहुत दुख होता है, क्यों होता है दुख, when you feel sad, right, and how you just overcome out of that sadness, what you do, yes, one by one। Sir, And may you I have to, say? yes, sure, Daksha ji, please। Sir, I feel sad when I saw my daddy is ill. Yes. Yeah, oh, I feel very And what sad. and what you do at that particular I time? At that time I go to God and I pray. Yes, God is the great one. Yes.
Nice. give me strength. I uh, I handle all situation Yes, very nice. Yes, give me strength. Very nice. Good. yes This. Yes, Priyanka. because okay Priyanka ji, Yes, sir. please share. When do I you feel, feel sad? Yes. I feel sad when I can't walk and I can't sit. I can't writing. I can't any work myself. So I feel very sad, sir. Okay. So what do you do at that particular time? सम बेड पे ही रहती हूँ ज्यादातर टाइम। ओके। सो आप क्या अपने आप को मतलब मोटिवेटेड करने के लिए क्या करते हो? सर कुछ भी नहीं करती, बस फोन देखती रहती हूँ। But you are very good and your grammar part is very good. So how you just improved this much? क्लास से पहले आपका ग्रामर पार्ट बहुत अच्छा है। सर मैं फोन पे बस ऐसे फोन ही देखती रहती हूँ और तो कुछ भी नहीं करती, बेड पर ही रहती हूँ। ओके, ग्रेट, नाइस। अच्छा है, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, राइट। नेक्स्ट, रचना जी, प्लीज शेयर योर थॉट। Yes, I feel sad when I can't complete my any work. क्या बोलते हैं उसे मतलब एक मिनट का रिपीट I feel sad when I can't complete my any work because of my physical barrier. Uh, then I try again and again that situation, particular situation. ओके, यस अश्विनी जी। अश्विनी जी, आर यू लिसनिंग मी? Sir, sorry, I नो am नो, mute. कोई नहीं। I will sad. I can't lots cry. ओके, सो व्हाट डू यू डू? व्हाई डू यू Uh, फील सैड? It's you said I cry, but why do you cry? Why do you feel sad? because मतलब सर कभी कभी आपके हाथों में कोई चीज़ नहीं होती ना, मतलब वो चीज़ आप चाहते हो उस तरह होनी चाहिए, बिकॉज हस्बैंड वाइफ बिट झगड़ा। Okay, okay. So what do you do at that particular time? Yes, sir. I will particular time this sadness and become happy to each other. Okay, nice, great. Okay, okay. Next, next. Right. कोई तो बोल। हाँ हाँ, बोलो तौफिक, तौफिक। Right. Very sad when someone somebody promised me. तौफिक, तुम्हारी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है शायद तुमने ना लीड लगा रखी है। हाँ, अब आ रही और है सर। तुम्हारे लीड से ही आवाज आ रही थी, वो जो आ रही थी ना। हाँ हेलो। हाँ जी, अब बोलो। When हाँ, वेरी गुड। I feel sad when someone promise me or someone say do anything. Someone promised me about we can do together anything or we can go with anywhere together and their friends do not go with me. Then I feel sad. Then ओके, then I think we let them go. One day we will do some big things. Then they will follow me.
and they will listen to my things. Right. Okay. Next, who is left? Yogi. Yogesh ji, please speak. Yes, sir. I feel sad when I do not work complete in timely At proper time. At proper time. अब at आप proper लोग time. Yes, अच्छा sir. आप लोग ना कोई भी मेरी बात का बुरा मत मानना, अगर मैं आपकी Okay. ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालो प्लीज, हाँ ये मेरी रिक्वेस्ट है, Yes, Yes, sir. Definitely. definitely. ठीक है सर ना, आप कोई बुरा नहीं मानना। आप गलती निकालेगी तभी सीखेंगे, इसमें बुरा क्यों मानेंगे हम? बताओ हाँ आप ठीक है, कैसे? चलेगा ना। ओके। यस चौहान योगेश जी प्लीज स्पीक। सर बस इतना ही। आई फील जब काम पूरा नहीं होता तो बहुत बुरा लगता So है what बस। और what do you do? What do you do for making yourself now to stay positive and all? टाइम पूरा करने की कोशिश करता हूँ। और कुछ Okay. Okay, let me now show you one more thing last. थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हुआ लेकिन कोई बात नहीं, आप सर लोग के लिए, हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं। Let me show you one thing. Oh my God, thing is not coming. Wait. Let me do it for you. Okay, I will share you the things not on Monday. बहुत अच्छा thought था वो ना। Okay, I will share verbally. I just I was reading a thought. तो उसमें ये लिखा था, when the world stops you, so the hope whispers, try again, right? तो सबकी लाइफ, किसी का ना माइक बज रहा है, प्लीज दक्षा जी आपका माइक। आवाज ही नहीं आ रही है। आइए दक्षा जी थोड़ा सा अपना अगर आप फोन से क्लास से रहते तो थोड़ा सा को पास कर लो, कोई नहीं। ओके, लास्ट में बोलूंगा कि समटाइम इट हैपेंस कि जब हमारी लाइफ में बहुत सारे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस होते हैं, राइट, एंड इट टू बी ऑनेस्ट माय डियर स्टूडेंट, इट हैपन विथ एवरीवन, right, with everyone in this world, it happens with everyone, right? Nobody is perfect and all, it happens with everyone. uh if you know about, there are so many legends, amir log, right? So they are also having problems. So instead of facing on problems and all, just stay motivated. सोचो कि why I am alive because of something. जो मैं वीडियो भेजूंगा ना आप उसको देखना, बहुत अच्छी वीडियो है वो, मुनीबा मंसारी के बारे में, राइट? मैं भेजूंगा, आप देखना, और देन वी विल डिस्कस इन द क्लास। ओके, Yes. सो थैंक्स फॉर द कॉपरेशन, रचना जी, अश्वनी जी, प्रियंका जी, तौफिक जी, दक्षा जी एंड चौहान जी, एंड दोज हु जस्ट लेफ्ट द क्लास, वन और टू स्टूडेंट, थैंक्स टू देम आल्सो। ओके, थैंक्स फॉर द बीइंग द पार्ट फॉर दिस क्लास। ओके सर। ओके, Thank गुड you. नाइट, टेक केयर, Yes, गुड sir. ऑल नाइट ऑफ सर। यू, गुड टेक नाइट सर। केयर। ओके, Sir, गुड नाइट, Thank गुड you. नाइट। Good night. Good night. ओके सर।